अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं वाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ और वाइट बोर्ड पे मैं आज के तमाम टॉपिक्स लिखता जाऊंगा ताकि वो तमाम टॉपिक्स जो मिड टर्म में आने हैं वो हमारे पास वाइट बोर्ड में एक बार लिखे जाएं। फिर आप उन से रेलेवेंट असाइनमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे और उन टॉपिक से रेलेवेंट आपका कोई भी सवाल होगा वो हम मिड टर्म की रिवीजन के लिए उसे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक सही है जी? Yes, sir. Okay, so I have opened the whiteboard और व्हाइट बोर्ड के अंदर सबसे पहला सवाल जो ग्राफ में हमने किया था वो क्या था, कौन बताएगा? तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ किया था जिसमें हमने क्या देखा था कि नोड्स क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है, राइट? उसके बाद हमने एग्जांपल्स ग्राफ की बनवाई थी। व्हाट एल्स? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स हमने किया था और उसके बाद क्या किया था? उसके बाद हमने कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ किया था। ये सब लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। जी सर। Yes, sir. सो हमने कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ किया था और नंबर ऑफ एजेस of completely connected graph. Number of edges of a completely connected graph. उसके बाद फिर हमने टोटल डिग्री ऑफ completely connected graph, नंबर ऑफ एजेस का फार्मूला, टोटल डिग्री का फार्मूला, ये हमने किया था। कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ एजेस ऑफ कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ कितने होते हैं? व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोहम्मद नसीम, मोहम्मद हमाद नसीम साहब जी बताइए। How many number of edges in a completely connected graph? Ji Hamad Naseem, yes. Do you want to answer? For what? Hamna Irfan, yes. N minus 1. N minus 1. Anyone else? So what is the degree of each node of a completely connected graph? Degree of each node. What is the degree of each node of a completely connected graph? एक completely connected graph की एक नोड की डिग्री कितनी होती है, कौन बताएगा? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। अगर आप लोग की यही हाल रहा तो मिड टर्म में आप सारे के सारे फेल हो जाएंगे और इस कोर्स में मैं 80% स्टूडेंट भी अगर फेल करने पड़े तो मैं कर दूंगा। आई डैम केयर। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे रिगरसली तो मैं आपको इस कोर्स में मेजॉरिटी को फेल कर दूंगा और C माइनस दूंगा। More than 50% of you will be getting C minus or F. So make sure you participate in the lecture. अगर आपको समझ नहीं आता, you ask questions as much as possible and make sure you understand it. So what is the degree of each node of a completely connected graph? At least give a try. तमाम लोग ग्राफ बनाएं, five nodes ले लें, make a graph of 4 nodes, make a graph of 4 nodes और वो completely connected graph बनाएं। Make a completely connected graph of 4 nodes. तो क्या जवाब आएगा? हमाद अली राना जी सर।
सर ईच नोड की डिग्री n-1 होगी। Yes, each node की degree n-1 होगी. It's a simple answer. And how many total number of edges will be there? The total number of edges in a completely connected graph. Yes, Safa. Yes. Sir, it's n times n-1 divided by 2. Yes, it is n into n-1 divided by 2. Simple and short answer. Mohammed Mahmood, yes. You want to say something? Yes, What sir, is ये the कहना total? Okay, what is the total degree of a graph? The total degree of a graph is Mohammed Mahmood. Yes, you tell me. sir n into n-1. N into n-1. That is correct. And then we started studying just barely connected graph. Just barely connected graph. What is just barely connected graph? Who tells? Who says? What is the correct answer? What is just barely connected graph? What is just barely connected graph? Hamna. Sir, in which every edge is a bridge edge? Yes, in this question, in this just barely connected graph, every edge is a bridge edge, but this is a property of a just barely connected graph. Now the question is, कि just barely connected की दो conditions होती है, वो क्या होंगी? हमजा. What are the conditions of just barely connected graph? Safa. Sir, there's two conditions. The first one is that all nodes are connected, and the second one is that number of edges are n-1. All nodes are connected. Number of edges are n-1. These are the two conditions of just barely connected graph. And what is the property of just barely connected graph? Sir, that every edge is a bridge edge. Every edge is a bridge edge. So this is property of just barely connected graph. But every edge is a bridge edge. Any other question? And then we started with what? Then we started with how to store a graph, right? No, then we started with directed graph. हमने directed graphs को देखा था. उसमें transpose of a graph ये देखा था. Complement of a graph हमने देखा था. एक normal graph है और उसका complement लेना है. So complement of a graph. और क्या question है? उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने किया था storing a graph. ग्राफ को स्टोर कैसे करते हैं? We have adjacency matrix, adjacency matrix, and the second is adjacency list. So these are the two ways of storing a graph. यहाँ तक सही है? Yes, sir. What else? Any other question? सर ये ट्रांसपोज का बताइए. कॉम्प्लीमेंट का तो ये होता है ना कि वो जिससे कनेक्ट है हमने उसको छोड़ के बाकी सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. ट्रांसपोज में क्या होता था? ट्रांसपोज में हम डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ को चेंज कर देते थे. डायरेक्शन ऑफ द एजेस को तब्दील कर देते थे. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ग्राफ है, लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ मौजूद है.
ये हमारे पास एक ग्राफ है और ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन है। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? What will be the transpose of this graph? Simply इसके ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे? इसकी अगर इस नोड से इस नोड की तरफ है तो हम ट्रांसपोज में क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन। अगर यहाँ से यहाँ है तो हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। अगर यहाँ से यहाँ है तो हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। So this is called the transpose of a graph. इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ ग्राफ। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। हमजा बिन तारिक, कोई क्वेश्चन है आपका? नो तो ये सर, मेरा ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री होता क्या है? व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? मोहम्मद महमूद विर्क, यस सर। Sir, all nodes are connected. Number of edges are n minus 1. All the edges belong to above graph. Yes, all nodes are connected. Number of edges are n minus 1. And the graph edges belongs to the original graph. So this is spanning tree. Spanning tree, दोबारा से लिख लेते हैं. What is spanning tree? All nodes are connected. Number of edges are n minus 1. All the edges belong to the original graph. तो स्पैनिंग ट्री निकालने के कौन कौन से एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं? हमना इरफान, yes. Sir, breadth first search, BFS, and DFS, depth first search. Breadth first search and depth first search. मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? What is a minimum spanning tree? Nada Muhammad. A spanning tree with minimum weight? Yes, a simple answer. Spanning tree with a minimum weight is called minimum spanning tree. And there are two algorithms. Those are the standard algorithms that are used to find minimum spanning tree. And what are those algorithms? What are those algorithms? Mohammed Mahmood Wait, yes. The Kruskal algorithm and Prim's algorithm. Yes, Safa आप बताएं. Sir, Kruskal and Prim's algorithm. Yes, that is true. Kruskal and Prim's. And then we studied single source, shortest path. And what is the algorithm that finds the single source shortest path? Nada Muhammad. Digestra? Dijkstra. So this is all we have so far that will be included in your midterm exam. अब अगर इस नंबर 1 के इसमें से कोई सवाल है तो आप पूछ लें और उसके बाद फिर हम असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. असाइनमेंट में से भी कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे and then we will be off.
क्लास फिर हम खत्म कर देंगे। मोहम्मद याकूब साहब जी फरमाइए। सर ये जस्ट पेयरली कनेक्टेड ग्राफ से ऊपर वाले 2 टॉपिक और ये सर इनकी एक एक एग्जांपल करवा दें, क्योंकि सर इसकी क्लास नहीं ली हुई हमने। ओके, सो जस्ट बेयरली कनेक्टेड ग्राफ से ऊपर वाला टॉपिक तो कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ है, राइट? तो आप चाह रहे हैं कि कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ आपको बता दिया जाए, राइट? यस सर। आपका जो सवाल है वो यही है कि कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ आपको एक बार रिवाइज करवा दिया जाए, जहां तक सही है? यस सर। ठीक है जी, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले लेट मी टेल यू कि जितना हमने पढ़ा था उससे रेलेवेंट हमने आपको एक असाइनमेंट ऑलरेडी दे दी है। सो जितना हमने पढ़ा था उससे रेलेवेंट आपकी असाइनमेंट 1 हम कर चुके हैं। जो हम पढ़ा था वो हमने साथ साथ रिवाइज भी कर लिया। And now we have completely connected graph. Completely connected graph क्या होता है, कौन बताएगा? Completely connected graph क्या होता है भाई, कौन बताएगा? हसाम अली राना बताएंगी। So each node is connected with every node of the graph. Each node is connected with every other node of the graph. तो अगर मैं नजा मोहम्मद, आपका क्या जवाब है? Sir, a completely connected a graph which is connected. Oh no, you know, अगर मैं कहूँ कि ये एक ग्राफ है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक ग्राफ है 1 1, एक तो ये, एक ये, अगर मैं आपसे कहूँ ये एक ग्राफ है, तो क्या ये कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ है? दिस इज कनेक्टेड, लेकिन ये कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ तो नहीं है। हमना इरफान, आप बताएं। Yes, sir, it's barely connected graph. And completely connected graph ये है कि in which each node is connected. यस, कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें each node is connected to every other node. कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें every node is connected with every other node. तो कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ में 1 जो है वो किससे कनेक्ट होगा? 2 से 3 से 1 4 से 2 से कनेक्ट होगा। 1 जो है वो 4 से कनेक्ट होगा। 1 3 से कनेक्ट होगा। अब 2 किससे कनेक्ट होगा? 2 1 से होगा, वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। 2 3 से होगा, यस, और Yes. 2 4 से भी होगा। अब हम 3 को देखते हैं। 3 1 से होगा, 2 से होगा, ऑलरेडी हुआ हुआ है। 3 4 से हमने देखा। अब हम 4 को देखते हैं। 4 1 से, 4 2 से, 4 3 से। So this is a graph which is completely connected graph. इसमें हर नोड की डिग्री 3 है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. What is the degree of a node? The number of edges incident on that node is called degree of that node. It has 3 degree, it has 3 degree, it has 3 degree, and it has 3 degree. अब कोई सवाल है तो पूछ लें। हमजा बिन तारिक, कोई सवाल है? सर मैंने ये पूछना था, कंप्लीटली कनेक्टेड की हमारी रियल लाइफ में कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? यस, लेट्स से आपके पास 4 एरियाज हैं लाहौर में। एक सब्जादार है, एक अल्लामा इकबाल टाउन है, एक यूएमटी है और एक समनाबाद है। और ये चारों एरियाज आपस में सड़क, हर एरिया से दूसरे एरिया तक कोई ना कोई सड़क जाती है।
इसका मतलब है अगर हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 1 ये यूएमटी है, ये 2 दिस इज अकबर चौक, this is Shaukat Khanam, and this 4 this is 4th one, and this is College Road। तो यहाँ से यहाँ पर भी कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ पर भी यूएमटी से आप डायरेक्ट कॉलेज रोड पे भी सड़क जा रही है, ठीक है। यूएमटी से अकबर चौक पे अगर डायरेक्ट सड़क जा रही हो, अकबर चौक से शौकत खानम को अगर डायरेक्ट सड़क जा रही हो, 3 से 4 तक अगर डायरेक्ट सड़क जा रही हो, तो वी कैन से दैट दीज ऑल आर कनेक्टेड। तो रियल लाइफ की एक तो एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल क्या है? सोशल मीडिया। फेसबुक पे आपके 4 दोस्त हैं, ये आप है, आपका ये दोस्त है 2, आपका ये दोस्त है, लेट्स से आपका नाम है अहमद, ये अकरम, ये बिलाल, ये असलम और ये बिलाल। तो अहमद जो है वो अकरम, असलम और बिलाल तीनों का दोस्त है, तो तीनों के साथ आपको कनेक्टेड है। ये जो है असलम, ये भी अकरम से, बिलाल से और अहमद तीनों से कनेक्टेड है, तीनों का दोस्त है। ये भी तीनों का दोस्त है और ये भी तीनों का दोस्त है, यानी ये चारों आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लेट्स से कि पहला 1 और 4 आपस में फ्रेंड्स ना होते फेसबुक के अंदर, तो आप ये लिंक यहाँ से हटा देंगे। ये समझ आ गई जी? यस सर, आ गई। यस सर। अब अगर आपका कोई और सवाल है तो पूछ लें। आज का लेक्चर बेसिक रिवीजन लेक्चर है। हम असाइनमेंट को खोल लेते हैं, असाइनमेंट को क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि अगर आपका असाइनमेंट से रेलेवेंट कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये असाइनमेंट में डाइजेस्ट्रा वाला बताइए जरा, मेरा उसका लेक्चर ओवर होने वाला है वो। जी 1 मिनट। ये पहला जो सवाल है, ये कौन सा सवाल कह रहे हैं जी आप? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये है जी असाइनमेंट 1। इसमें कौन सा सवाल आपने पूछना है? डाइजेस्ट्रा वाला क्वेश्चन नंबर, ये जो 3 है इसका, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है जो। ये जो दूसरा था ये भी ये प्रोस्कोल था, ये प्रिंस था, और ये वाला डाइजेस्टर है। डाइजेस्टर में हम क्या करते हैं, बिल्कुल वही आपने सिंपली यहाँ पर V1 यानी कि 1 ले लेना है, 1 से 2 आपने 4 लिख देना है, 1 से 5 6 लिख देना है, और बाकी तमाम नोट्स के ऊपर आपने इन्फिनिटी लिख देना है। सिंपल। और अब आप देखेंगे कि ये बकेट में डाल देंगे नोट। उसके बाद 2 और जी, सबसे पहले आप इस पर अगर डाइजेस्टर अप्लाई करते हैं तो आपने V1 पे अप्लाई करना है। तो V1 का मतलब है नोड 1। लेक्चर में गुम होता है फिर क्या, मुझे समझ कुछ नहीं होता इसमें। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, ये नोड 1 जो है वो आप बकेट में डाल देंगे। यहाँ तक सही है? डाइजेस्टर में बाकी सब इन्फिनिटी रखना होता है। So you will put the node 1 in the bucket. उसके बाद हमने हमेशा 2 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप क्या है? अपडेट द वेट्स। और दूसरा स्टेप क्या है? ऐड द नोड विद स्मॉलेस्ट वेट। तमाम नोड्स पर जब आपने 1 बकेट में डाला है, इनिशियली तमाम नोड्स के ऊपर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। 5 के ऊपर भी इन्फिनिटी लिख दें, 9 के ऊपर भी इन्फिनिटी लिख दें, 10 पर भी, 11 12 6 7 8 2 3 4। तो 1 के ऊपर आपके पास 0 है, वन के ऊपर आपके पास 0 है। अब आपने देखा कि मैंने वेट्स को अपडेट करना है। 4 + 0 = 4, 6 + 0 = 6। तो अब इसमें जो नोड विद द स्मॉलेस्ट वेट वो कौन सी है? सर
2, तो 2 को हम बकेट में डाल देंगे। अब हमारे पास बकेट में 1 और 2 आ गया। ठीक है जी। ओके सर। अब हम नोट्स वेट्स को अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 इधर आ जाएगा, 4 + 6 10 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आप करते जाएंगे और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा डाइजेस्टर एल्गोरिथम इस पे चल जाएगा, जैसे हम पहले भी करते रहे। इट्स सो सिंपल जी। और कोई सवाल? सर ये मैं ना 1 मिनट आपको मैं अपना वाला स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, उसमें अगर बता दें जैसे मैंने किया वो सही है। ओके श्योर। जी मैंने आपको शेयरिंग की राइट्स दे दी है, बताएं सर। सर ये नजर आ रहा है? लेकिन यस, लेकिन आपने ये क्या किया हुआ है, आपने नोट 1 से शुरू किया है, उसके यस बाद सर। आप अगली नोट के लिए दोबारा ग्राफ बनाए। तो मेक अ ग्राफ फॉर ईच स्टेप। यानी कि हर नोड के लिए वो स्टेप बाय स्टेप बन जाना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, डायरेक्ट नहीं करना। और जैसे सर मैंने समझाया था, सर जैसे मैंने सर समझाया था उसी तरह से आपने हर नोट को बकेट में ऐड करना है, फिर नया ग्राफ बनाना है, फिर नोट ऐड करनी है, फिर नया ग्राफ बनाना है। मैंने और सर जो स्लाइड्स थी, आप मेरी बात खत्म करने दें, बीच में मत बोले, या आप बोल रहे हैं या मैं बोल लेता हूँ, ठीक है ना। एक वक्त में एक ही बंदा बोल सकता है। लेट मी फिनिश विद इट एंड देन यू आस्क द क्वेश्चन। अब आपने सवाल पूछ लिया, सारा हो गया, मेरी बात सुन लें पूरी, आप बीच में बार बार बोल रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जब आप एक ही ग्राफ के अंदर बनाते हैं तो इट्स बिकम्स सो गार्बेज, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इवन आपसे भी अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप इस तरह के ग्राफ में जब भी कोई नोड बकेट में डालेंगे तो 2 स्टेप्स करेंगे, अपडेट द वेट्स एंड सेलेक्ट द नोड विद द स्मॉलेस्ट वेट, और फिर नया ग्राफ बनाएंगे, फिर अपडेट, फिर बकेट में नोड डालेंगे उसमें और अपडेट करेंगे वेट्स को, फिर वही 2 स्टेप्स करेंगे, अपडेट द वेट्स, सेलेक्ट द नोड विद द स्मॉलेस्ट वेट। अब जब आप नोड अगली बकेट में डालेंगे तो नया ग्राफ बनाएंगे। तो अगर इसमें 12 नोड्स हैं तो 12 बार ये ग्राफ बनेगा। अब क्या सवाल है आपका? सर ये मैंने ये पूछना था, ये नीचे वाला कि ये जो नीचे मैंने किया हुआ है ये आपने तो ये शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह ये फाइंड करना है कि सिर्फ ऊपर वाला ही करना था? सिर्फ जो आपने मैंने क्लास में बताया है कि बकेट्स आपने बनानी है और चलानी है, बस आपने वही करना है। ओके सर ओके। अच्छा जी, इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आज का लेक्चर इख्तिताम करते हैं। उमर अयूब, यस याकूब साहब। सर जस्ट बेयरली कनेक्टेड ग्राफ की भी एक सर एग्जांपल करवा दें। जस्ट बेयरली कनेक्टेड ग्राफ जो है वो क्या होता है, कौन? ओके, सो लेट्स मेक अ जस्ट बेयरली कनेक्टेड ग्राफ। दिस इज अ जस्ट बेयरली कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इसमें ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, नंबर ऑफ एजेस आर n-1, सो ये दोनों कंडीशंस को मीट कर रहा है। all the nodes are connected and number of edges are n-1, so this graph is just barely connected graph। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। any question sir? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर क्लियर है। उमर अयूब साहब जी पूछिए। सर ये मैंने ये पूछना था कि जो मिड आएगा उसमें हमें जैसे हमें असाइनमेंट आई है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वो एमसीक्यूज वगैरह टाइप भी आएंगे?
नहीं, एमसीक्यूज तो नहीं आएंगे, इसी तरह के सवालात आएंगे जैसे असाइनमेंट है, छोटे छोटे सवालात हो सकते हैं। ओके और सर। भी सवाल? आप तैयारी जो है वो लेक्चर से करें, असाइनमेंट से करें, और फिर बुक भी पढ़ें। एनी अदर क्वेश्चन? सर वो थीटा मिड के बाद कंटिन्यू करेंगे सर। मोहम्मद महमूद विर्क, जी सर। सर वो थीटा जी बिल्कुल, हमारा रहता था वो जी मिड के बाद बिल्कुल। सर? जी असल में आज के लेक्चर में मैं थीटा कंप्लीट करवा सकता था और आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तीनों असिम्प्टोटिक नोटेशंस कंप्लीट हो जाती, और फिर मैं वो मिड टर्म में वो भी साथ ऐड कर सकता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि मिड टर्म से पहले एक रिवीजन सेशन भी हो जाए, ताकि आप लोग थोड़ा सा मिड टर्म में आपको रुक कर आप जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और वो इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद हम थीटा बी और रनिंग कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हम सारी कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। थैंक यू हसाम अली राना। सर हमें सूडो कोड का क्वेश्चन भी आ सकता है। यस यस यस। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन गाइस? अच्छा, फिर हम आज की क्लास बर्खास्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आई वांट कि इसका एक फीडबैक ले लिया जाए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए हाउ इट वेंट। तो मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊंगा ताकि हम फीडबैक ले सकें। ओके ओके सर। ओके सर।